two-dimensional arrays. Hmm. So C allows us to define two-dimensional arrays. Two-dimensional arrays are declared as follows. Syntax is array अंडरस्कोर टाइप, इंट टाइप है, ये फ्लोट टाइप है, एरे अंडरस्कोर नेम, नेम क्या मैट्रिक्स है या कुछ और है, रो साइज पहले आएगा फिर कॉलम साइज. दिस लेक्चर इज़ फॉर BA BSc और SEM सेकेंड ईयर प्रोग्रामिंग इन C एंड न्यूमेरिकल मेथड्स. तो अनलाइक other languages, C places each size in its own set of brackets. As with the single dimensional arrays, each dimension of the array as is indexed from 0 to its maximum size -1. The first index of array selects the row and the second index selects the column. That column within that column. For example, int array bracket 3 bracket 4 declares an array of type integer int with 3 rows and 4 columns. Representation of two-dimensional arrays. Row 0, row 1, row 2, column 0, column 1, column 2, column 3. 0 0 0 0 0 first row 0, first bracket is for row, second bracket is for column. 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3. Like the one-dimensional arrays, two-dimensional arrays can be initialized by the following their declarations with a list of initial value and closed in braces. For example, int num 3 4 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2. तो ये क्या लेगा, एक मिनट. इनिशियलाइज द फर्स्ट रो टू 0, सेकेंड रो टू 1 एंड थर्ड रो टू 2. ठीक, थर्ड रो 2 है, फर्स्ट रो 0 है, सेकेंड रो 1 है, थर्ड रो 2 है. इनिशियलाइज इस तरह की, वेयर ईच रो कंटेन्स 4 कॉलम्स, ईच रो में 4 कॉलम हैं. द इनिशियलाइजेशन इज डन रो वाइज. द अब स्टेटमेंट कैन बी अल्टरनेटिवली रिटन एज इंट num bracket 3 bracket 4 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2. Okay, semicolon. Wait. Now, by surrounding the elements of each row with braces, हर एक रो को ब्रेसिस से सराउंड करेंगे. व्हेन द एरे इज कंप्लीटली इनिशियलाइज with all values explicitly.
by surrounding the elements of each row with braces. When array is completely initialized with all values explicitly, the size of first dimension needs not be specified. That is, the following statement is allowed in C language. Int number num bracket 1 bracket 4 assign 1, ठीक है, 0 0 0 इक्वल, ये ब्रेसेस है, 1 1 1 2 2 2 ब्रेस क्लोज्ड. Values missing during initialization are automatically set to 0. For instance, the statement int sum int num 3 4 brace 1 1 2 0 brace closed initializes the first two elements of the first row to 1, the first element of the second row to 2, the first element of third row to 0, and all other elements of the array is 0, and all other elements of the array to 0. For initializing all the elements to 0, the following variations are also allowed. Int num 3 4 braces 0 0 0 semicolon, or int num braces 3 braces 4 0 0. Consider the following program for matrix multiplication. कहते कंसिडर करो द फॉलोइंग प्रोग्राम फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस. प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस. ओके, तो include standard input output dot h, include conio dot h, void main bracket braces start int I j m n p q k. इनको int टाइप लेंगे हम. I j m n ये रो कॉलम है. I j m n p q k. फ्लोट टाइप क्या लेंगे? a. साइज क्या है एरे का? देख ये क्या है, पहले हमने लिया एरे टाइप फ्लोट. ए रो साइज 10 है, कॉलम साइज 10 है. बी रो साइज 10 कॉलम साइज 10. सी रो साइज 10 कॉलम साइज 10 है. क्लियर स्क्रीन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन. प्रिंट एफ एंटर ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स न्यू लाइन कैरेक्टर कॉमा. स्कैन एफ से क्या देखते हैं हम, इसमें डाटा को फीड करते हैं. इन्वर्टेड कॉमा परसेंटेज डी एंड एम एंड एन. प्रिंट एफ एंटर ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स न्यू लाइन कैरेक्टर ब्रैकेट 1. ठीक, अब स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड पी एंड क्यू. पहले क्या था, एंड एम एंड एन, एम और एन था. फिर अगले में क्या है, एंड पी एंड क्यू. स्कैन एफ क्या करना, परसेंटेज डी एंड पी एंड क्यू. और ये क्या, प्रिंट एंटर ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. फर्स्ट
हमने प्रिंट एफ क्या है, एंटर ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, न्यू लाइन करेक्टर, परसेंटेज डी परसेंटेज एंड एन, ठीक है। और फिर क्या प्रिंट एफ एंटर ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, न्यू लाइन करेक्टर। और स्कैन एफ क्या है, परसेंटेज डी परसेंटेज एंड पी एंड क्यू, सेमी। इफ एन, ये ऑपरेटर लगाया, एन इज नॉट इक्वल टू पी, ये ब्रेसिस प्रिंट एफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर इफ नंबर ऑफ कॉलम है इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम है साइज, अगर दूसरी मैट्रिक्स के रो साइज के बराबर ना हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो प्रिंट एफ क्या कर देगा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, न्यू लाइन करेक्टर। गो टू एंड, यहाँ स्टॉप कर देगा ये, गो टू स्टेटमेंट लगाई एंड, ब्रेसेस क्लोज्ड। अब प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स, न्यू लाइन करेक्टर फर्स्ट मैट्रिक्स। अब फॉर लूप दे दिए यहाँ, क्या रिपीटिशन करा रहे हम, पहली की रो दूसरे की कॉलम, इस तरह से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। और i इक्वल टू 0, स्टार्ट फ्रॉम i लेस देन m, जो रो साइज है ना उससे छोटा रहता है, और इंक्रीमेंट तब तक ये फॉर लूप ऑपरेट करेगा जब i लेस देन m हो, और i प्लस प्लस ब्रेसिस क्लोज्ड। फॉर लूप j पे लग रहा है, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन n, j क्या है, डिसीजन कंट्रोल वेरिएबल है j, और लूप उस पर लगा j इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस, स्कैन f, क्या स्कैन करा रहा है आपको, परसेंटेज f फ्लोट टाइप है ये, कॉमा एंड एम्परसेंड a स्क्वायर ब्रैकेट i स्क्वायर ब्रैकेट j सेमीकोलन, ये ब्रेसिस क्लोज्ड। ये आपके दो लूप के अंदर लूप है, ख़त्म हो गया। अब प्रिंट एफ एंटर सेकंड मैट्रिक्स एंटर करेंगे, यहाँ फॉर लूप लगाएंगे, और i रनिंग फ्रॉम 0, i लेस देन p, वहाँ m और n था, यहाँ p और q है, i लेस देन p, i प्लस प्लस, और किस पे लगाया, i पे, ब्रेसिस फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन q, सेकेंड मैट्रिक्स पे हमने फॉर लूप j प्लस प्लस, स्कैन f, ये इन्वर्टेड परसेंटेज f क्लोज एंड b, एरे i एरे j सेमीकोलन है, ब्रेसिस क्लोज्ड। अब क्या है इसका रिजल्ट, और i इक्वल टू 0, i लेस देन m, i प्लस प्लस ब्रेसिस, और j इक्वल टू 0, j लेस देन q, j प्लस प्लस, ठीक, ब्रेसिस c i j, ये नया वो आ गया जो प्रोडक्ट हो गया आएगा, इक्वल टू 0, फॉर k इक्वल टू 0, k पे ये k लेस देन n, k प्लस प्लस, अब c i और j, फर्स्ट रो है i th रो, j th कॉलम, इक्वल टू c i j प्लस a i k, पहली रो, मल्टीप्लाई b k j, ठीक है। इसलिए पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, a i k स्टार मल्टीप्लाई b k j, ठीक, ब्रेसिस क्लोज ब्रेसिस। प्रिंट एफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज न्यू लाइन करेक्टर, और i इक्वल टू 0, i लेस देन m, i प्लस प्लस,
braces for j equal to 0, j less than q, j plus plus printf percentage f, cij printf new line character braces closed and get character braces closed। तो ये आपका प्रोग्राम आ गया। आउटपुट क्या देगा ये, एंटर ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स 3/2 का है। अब एंटर ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स 2/1 का है। तो एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या था 1:2, एंटर ऑर्डर फर्स्ट में 1:2, फर्स्ट मैट्रिक्स 1 2 4 4 5 6 0। एंटर सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या 1/1, एक रो एक कॉलम 6 4। रिजल्टेंट मैट्रिक्सेस, इसको गुना 14.000 14.000 36. अब आउटपुट सेकंड लेनी है, एंटर ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स 3/3, एंटर ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स 2/3। अब 3 और 2 उसका कॉलम इस की रो के बराबर नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ये लिख के आएगा। नाउ कंसिडर द प्रोग्राम टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। Dear students, you can view this lecture online on college YouTube channel www.bljs.com. Still, if there is any problem, you can view this lecture on WhatsApp group Maths BA BSc TSM1. And still, if there is inconvenience, you can contact me, email me. Thanks. We will meet in the next lecture. Thank you.